Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup Sir. How are you all? I hope all of you are doing well. And in our last video, we were discussing about the performance appraisal. Means what is performance appraisal, what are the objectives of performance appraisal and why it is important for the organization, and what is the process of appraising the performance of the employees. And from that video we can conclude that performance appraisal is very important for the organization, as it help in making policy for the future, means for how we can improve the performance of the employees. What are the training policy, what will be the development policy, what will be the promotion and planning and all other. So performance appraiser help the organization in designing the future policies related to the employees. So it is the important aspect from the organization as well as employees point of view. In today's video we will discuss about the methods of performance appraisal. Basically, the methods of performance appraisal are divided into two categories: past oriented method and future oriented method. And in past oriented method we will study the 13 method, in future oriented we will study 5 method. And past oriented means which are based on the past performance of the employees, means how he performed in the past. On this basis we will decide the training, we will decide the salary, we will decide the increment, we will decide the promotion and all. In future oriented, as the name indicate, in this method we will try to find out the future potential of the employee for the future job. On this basis we will prepare the employee for the future positions, for the growth of the organization. Normally we can say that future oriented methods are used for the managerial position or for the top management positions, where we check the potential of the employee for the next level, and these are normally for the middle level, lower level or supervisory level, so that we can improve the performance of the employees. And now we will start with the methods one by one. First is rating scale. Rating scale बहुत बार सुनते हैं हम, कई जगह इस बात को पढ़ते भी हैं. रेटिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड. मीन्स वी रैंक द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स. कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम उसकी जॉब के ले लेते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर उनको रेट कर देते हैं. जैसे कि मान लो आपने इनिशिएटिव ले लिया, जैसे कि आपने डिपेंडेबिलिटी ले लिया, जैसे कि आपने उसका अटेंडेंस ले लिया, उसका आप डिसिप्लिन ले सकते हैं, जैसे कि आपने आउटपुट लिया, एटीट्यूड ले लिया, कोऑपरेशन विद द अदर एम्प्लॉयज़. इन कुछ फैक्टर्स या कुछ जो हैं ट्रेट्स हम ले लेते हैं जॉब से रिलेटेड, और उन ट्रेट्स को हम रेट कर देते हैं कि किस स्केल में उसको कितना रेट जो है मिला है. तो रेटिंग, वो रेटिंग भी हो सकती है, वो ग्रेडिंग भी हो सकती है. जैसे 1 to 5 आपने नंबर दे दिया, या आप गुड, वेरी गुड, पुअर, वेरी पुअर, एक्सीलेंट, इस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं. तो हम उसको रेट कर देते हैं और बाद में कंपेयर करने के लिए कि उसकी रेटिंग कितनी आ रही है, आपने किस ट्रेट पे कितना स्कोर किया है, उन स्कोर को जो है आप ऐड कर देते हैं और उन स्कोरिंग के बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ का जो है प्रमोशन होना चाहिए, या उसका जो हमने उसको स्टैंडर्ड दिया था वो उन स्टैंडर्ड को मैच कर पाया है या नहीं कर पाया. तो रेटिंग स्केल जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट. इसके एडवांटेजेस क्या है कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड. आपको अलग से किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, अलग से किसी इवेल्यूएटर की ज़रूरत नहीं है. आपके जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही उसके ऊपर काम करते हैं. बट डिसएडवांटेज क्या है, देयर कैन बी बायस्डनेस. There can be biasness, means rater can be biased to the employees. He can give high score to the favorite and he can give lower score to the person who is not in favorite list. Clear? This is the rating scale. Means मेन क्या है डिसएडवांटेज कि यहाँ पे बायसनेस हो सकती है. पर्सनल हमारे किसी चीज़ को लेके कोई ज़्यादा अच्छा लगता है उसको ज़्यादा रेट कर देंगे, जिसके साथ लड़ाई हो रखी है उसको कम रेट कर देंगे. ये करते ही हैं बहुत से लोग. नेक्स्ट मेथड इज फोर्स्ड चॉइस. ठीक है, फोर्स्ड चॉइस मीन्स एज द नेम इंडिकेट कि वी गिव द चॉइस टू द रेटर. चॉइस करते हैं रेट्स में सिर्फ येस और नो. ठीक है, वी मेक सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जॉब
make some statement related to the job and the rater is asked to choice these statement. उनको जो है चॉइस करने के लिए वो दिया जाता है कि आप उसमें से ही चेक करेंगे, उसमें से ही आप बताएंगे कि उसको कितना नंबर हमने देना है या नहीं देना. दैट इज फोर्स चॉइस, कि आपने उसी स्टेटमेंट में से उनको जो है चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है उसके लिए नहीं है. मीन्स जैसे आपने लर्निंग के लिए दिया कि लर्निंग ऑफ ए एम्प्लॉयज, लर्न फास्ट, लर्न स्लोअर और वर्क हार्ड. ठीक है, दीज आर द थ्री स्टेटमेंट and the rater have to select from these statement only. That's why this is known as forced choice, कि we have make the statement related to the trait and rater is forced to select from these choices. उन्हीं choices में से आपको force किया गया है कि उन्हीं में से जो है आपको select करना है, उसमें कोई और आपको नहीं करना है. मीन्स जैसे आपने किसी की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है, वर्क इज रिलायबल, काम सही कर रहा है, द परफॉर्मेंस इज गुड एग्जाम्पल, या परफॉर्मेंस सही है या नहीं. मीन्स आपने उसको चेकलिस्ट की तरह से कुछ स्टेटमेंट दे दी हैं और उसमें से उसको फोर्स कर दिया गया है कि यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज चॉइसेस ओनली. बट इसका फ़ायदा क्या होता है, ये पर्सनल बायस्डनेस जो यहाँ पे हो रही थी ना, ये बायस्डनेस जो हो रही थी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमने उसको रेट करने के लिए नहीं बोला, हमने तो 3 स्टेटमेंट दे दी हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आप चूज करो. तो इट रिड्यूस द बायस्डनेस, बायस्डनेस को थोड़ा सा कम कर देता है फोर्स चॉइस मेथड. समझ आया कि फोर्स चॉइस मीन्स द रेटर इज फोर्स्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम द few statement about a job, few statement about a particular trait that is related to. But इसका disadvantage क्या है? This is not easy to draw the statement. Statement draw करना इतना आसान नहीं है. You should be expert in drawing the statement related to the job. तो this is forced choice method. क्लियर, समझ आया कि फोर्स चॉइस मेथड में जो है क्या होता है. नेक्स्ट इज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों मेथड में हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ उसको चॉइस दे रहे हैं, हमने उसको रेटर के ऊपर छोड़ दिया है कि वो उसको हाई रेट करता है, लो रेट करता है, किस तरह से करता है. तो इसमें क्या है कि कुछ एवरेज वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो गया. तो फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क ऑन द फार्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारे सारे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं हो सकते, हमारे सारे एम्प्लॉयज जो है बुरे नहीं हो सकते. तो जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस लेवल है दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस लेवल कन्फर्म टू द नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से काम करता है. आप स्टैट पढ़ोगे, स्टैट के जब वीडियोस देखोगे उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाएगा. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आपको पता है कि ये बेल शेप्ड होता है. बेल शेप्ड मीन्स दोनों तरफ आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. और हम इसी के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. तो हम ये मान के चलते हैं कि 40% ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज एवरेज. सारी परफॉर्मेंस हमारी बिलो एवरेज नहीं होती, ना ही हमारा हर एक एक्ट जो है अबव एवरेज होता है. तो 40% ऑफ द परफॉर्मेंस इज एवरेज, एवरेज स्कोर के अंदर आती है. 20% इज बिलो एवरेज, 20% इज बिलो एवरेज, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है. एंड 10% इज अनसेटिस्फैक्ट्री, 10% इज अनसेटिस्फैक्ट्री. और इसी के अकॉर्डिंग 20, ये दिस इज आवर एवरेज, 20% इज गुड एंड 10% इज वेरी गुड. ठीक है, तो ये फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी और बुरी दोनों तरह से हो सकती है. मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से जो है काम करता है. एंड बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप किसी को भी जो यहाँ पे लीनियंटी में किसी को हाई स्कोर या लो स्कोर दे रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. एक एवरेज आपको स्कोर हर एम्प्लॉय को मिल जाता है. बट इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? दिस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस लेवल में कन्फर्म टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन in organization that have a good job of selecting and retaining only the good performance. Means this is possible in the organization when you have the good employees, means their performance cannot be below that level and they
are doing well. So this is can be used for the employees which are very good in their performance, which are performing well. And but this is carried out annually carry किया जाता है. बहुत सी कंपनीज इस बेल शेप्ड कर्व को अब छोड़ रही हैं. दिस इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव नावेडेज. तो दैट इज़ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स हम एक तरह से रेटर को फोर्स करते हैं कि वो एम्प्लॉय को इन कैटेगरीज में डालें और इस कैटेगरी में जो है चेक करें. नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंसिडेंट. क्रिटिकल इंसिडेंट मीन्स द एम्प्लॉय असेसमेंट आर जनरेटेड द लॉट ऑफ इंटरेस्ट दीज डेज. The approach focus on the critical incident behavior of employees that make the difference between effective and non-effective performance. Critical incident means किसी स्पेशल इंसिडेंट के अंदर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है. मीन्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन द क्रिटिकल इंसिडेंट, ऑन द क्रिटिकल बिहेवियर विच मेक हिम परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस. कि जिस पे बेस पे आप ये कह सकते हो एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया या नहीं किया. मीन्स इमरजेंसी की सिचुएशन में या उसको जो काम दिया गया उस सिचुएशन में उसने किस तरीके से किया. परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ये चेक करने के लिए जो हम करते हैं. बट दिस इज द एक्चुअल चेकिंग. मीन्स एक्चुअल जॉब बिहेवियर हम देखते हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो आपने किस तरीके से जो है उसके ऊपर काम किया है. जैसे हमने बोला कि सुपरवाइज मशीनरी मेंटेनेंस. एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं कि एक बंदे की ड्यूटी है कि उसको मशीनरी मेंटेन करनी है. उसको ये देखना है कि मशीन जो है वो सही तरीके से चलती रहे, उस मशीन में कोई गड़बड़ ना आए. इसके पीछे कारण क्या है कि उसको मशीनरी मेंटेनेंस का काम क्यों दिया गया. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. मीन्स नो शटडाउन ड्यू टू फॉल्टी मशीनरी. कि फॉल्टी मशीनरी की वजह से कोई शटडाउन ना हो. तो अब वो क्या करेगा कि फॉल्टी मशीनरी की वजह से कोई शटडाउन ना हो, इसके लिए वो प्रोएक्टिव मेजर लेता है. मतलब हम वेट नहीं करेंगे उस मशीन के ख़राब होने का, उसको पहले से हम देख के रहते हैं कि क्या इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो ख़राब हो सकती है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वर्किंग रख सकती है. तो इंस्टीट्यूटेड न्यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम फॉर द प्लांट एंड प्रिवेंटेड ए मशीन ब्रोक डाउन बाय डिस्कवरिंग द फॉल्टी पार्ट. तो हमने उसके लिए क्या किया गया कि पहले से ही हमने एक मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप किया और किसी मशीन के ख़राब होने से पहले उसकी फॉल्टी पार्ट्स को ढूंढ लिया. अब उस फॉल्टी पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे तो जो है मशीन ठीक चलने लगेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट. मीन्स परफॉर्मेंस एंड द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज या परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज related to the critical incident. This is very much useful nowadays. बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है कि नेगेटिव बिहेवियर इज नोटेड मोर देन द पॉजिटिव बिहेवियर. नेगेटिव बिहेवियर इज नोटेड मोर देन द पॉजिटिव बिहेवियर. और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि सुपरवाइजर कैन फॉरगेट द क्रिटिकल इंसिडेंट. वो भूल सकता है क्योंकि एक साल के बाद जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है नॉर्मली. तो एक साल के अंदर किसी टाइम पे आपने 6 महीने पहले क्या किया था तो सुपरवाइजर कैन फॉरगेट क्रिटिकल इंसिडेंट का. ये मेन डिसएडवांटेज है. और मीन्स ओवरली क्लोज सुपरविजन में रिजल्ट. मीन्स हमें ज़्यादा सुपरविजन चाहिए. डेली उसको चेक करना है कि इसने कैसे काम किया जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या इसने क्या किया जिसकी वजह से ये नॉन परफॉर्म जो है कर रहा है एम्प्लॉयज़. तो इसलिए हम इसको रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. नेक्स्ट बहुत बार आता है, इसकी तो फुल फॉर्म भी आती है बार्स की. बार्स स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड बार्स इज द method of measuring the performance appraisal. BAR stand for the behaviorally anchored rating scale. BAR stand for behaviorally anchored rating scale. Means sometime this is also known as behavior expectation scale. Means what behavior we expect from our employees. And in the bars are said to be behaviorally anchored rating scale. The scale represents the range of descriptive statement of behavior varying from least to the most effective. Means आपका जॉब के ऊपर बिहेवियर क्या होना चाहिए. What should be your behavior at the job. एंड उस जॉब के बिहेवियर को हम स्केल करते हैं एट द वेरियस पॉइंट्स. जैसे रेटिंग में करते थे. दिस इज समवट सिमिलर टू द रेटिंग. तो हम उसमें सिर्फ उस जॉब को आप रेट करते हैं बिहेवियर के बेस के ऊपर.
तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस हमने इवेल्युएट करनी है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इवेल्युएशन, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अप्रेजल, कि कौन सी हमने परफॉर्मेंस जो है अप्रेज करनी है, कौन सा चेक करना है। देन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप स्केल डेवलप करते हैं, स्केल डेवलप किया जाता है कि इसको 1 to 5, 1 to 7, 1 to 3 कौन से स्केल के ऊपर हमने उसको रेट करना है। और फिर जो भी डायमेंशंस हैं उस जॉब से, उस बिहेवियर से लेके उनको इवेल्युएट किया जाता है और बार को जो है तैयार लिया जाता है। और रेटर्स जो हैं जो उसको रेट करेंगे उनको हम इस डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो बार्स इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एंड टू प्रोवाइड result which the subordinate could use to improve the performance, and supervisor would feel comfortable to give feedback to the ratees। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि एक ईजिली आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हो और आपका सुपरवाइजर भी जो है ईजिली आपको कंफर्टेबली उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो दिस इज़ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। बार्स इज वाइडली यूज्ड। बस इसके अंदर भी वही डिसएडवांटेज है बायसनेस की, कि यहाँ पे भी जो है बायसनेस हो सकती है। आप उसको अलग अलग तरीके से अपने फेवरेट एम्प्लॉय को अलग रैंक कर सकते हैं, अपने जो बंदा आपको पसंद नहीं है उसको आप अलग रैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू एज द नेम इंडिकेट, फील्ड में जाके रिव्यू करना, मतलब मीन्स to go at the place of the job and review the performance of the employee, and this is done by the outsider. The outsider may be from the corporate office, the outsider may from the HR department, means your supervisor, your boss and your colleagues are not going to appraise your performance. It is appraised by the outsider, and वो outsider कोई भी हो सकता है। अब HR डिपार्टमेंट से, आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से भी बंदा आ सकता है। बट इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो आउटसाइडर आ रहा है ही और शी डजंट नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द जॉब। वो सिंपल उसके बास के ऊपर आपको देखेगा। एंड द आउटसाइडर रिव्यू डज नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द एम्प्लॉय बिहेवियर और परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो सिर्फ एक ही बार देख रहा है, पूरे साल आपने क्या किया, पूरे साल आपने किस तरीके से किया, वो उस परफॉर्मेंस को नहीं चेक कर पा रहा। वो सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगा, उस टाइम पे आपसे बात करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, आपके बॉस से पूछेगा और आपके बिहेवियर को जो है रेट कर देता है। फील्ड रिव्यू मेथड ये भी कम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आउटसाइडर है और वो आपकी एक्चुअल जॉब कंडीशंस को नहीं जान सकता, ना ही उनको इसके बारे में पता होता है। दिस इज क्लियर हुआ क्या है? उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सारी कंपनीज में होता है कि एम्प्लॉयज़ का हमें परफॉर्मेंस देखना है, हम साल में 6 महीने में कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितना वो लर्न कर रहे हैं या कितना वो आगे अपने आप में पोटेंशियल दिखाते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। जैसे हमारा क्लास टेस्ट होता है, जैसे आपने एमकॉम कर रहे होगे या एमकॉम कर चुके होगे तो उसका पेपर दिया, मीन्स क्लियर कर लिया तो आप पास हो गए। इसी तरह से पेन एंड पेंसिल, पेन और पेपर टेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ का लिया जाता है और ये चेक करने के लिए उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। दिस इज नॉर्मली फॉर चेकिंग द नॉलेज। नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, स्किल्स को जो है चेक करने के लिए होता है। एंड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल एंड वैलिडेटेड। और अगर आप उस टेस्ट को पास करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस को हम हाई रैंक करते हैं, नहीं करते हैं तो दोबारा मौका दिया जाता है या उसको लो रैंक करते हैं। और टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आपका प्रमोशन या आपका इंसेंटिव या आपका बोनस जो है डिसाइड किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इजीएस्ट मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? कोई बायसनेस नहीं होती, सब क्योंकि आप जैसा परफॉर्म करोगे उसी तरह से रेट मिल जाएगी। तो देयर इज़ नो बायसनेस, देयर इज़ नो एक्सपर्ट नीडेड। टेस्ट बनाया और एम्प्लॉयज़ को दे दिया। दिस इज आल्सो यूज्ड। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट।
मीन्स इसके लिए हम एक ACR सबमिट करते हैं। एवरी एम्प्लॉइज़ या एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हर एम्प्लॉय के एक ACR जो है सबमिट करवाता है। ACR इज़ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि पूरे साल में आपने क्या किया है। उसमें नॉर्मली 14 आइटम्स होते हैं आपकी अटेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू वर्क, लीडरशिप, इनिशिएटिव, टेक्निकल एबिलिटी and ability to understand the new material, ability to reason, originality, areas of the work, memos and all this. And ये जो आइटम्स हैं वो सारे फुलफ़िल किए जाते हैं और जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास भेज दी जाती है और उस ACR के बेस के ऊपर आपके बारे में डिसाइड किया जाता है कि आपको जो है क्या रेट करना है, आपकी परफॉर्मेंस को वो उस ACR के बेस के ऊपर चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो है परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो दैट इज़ नोन एज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। दिस इज़ नॉर्मली यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट इसका भी सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बायसनेस होती है। जो आपका बॉस है, अगर आप उसके फेवरेट हैं तो वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकता है और अगर आप नहीं हैं तो जो है आपके लिए वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख के भेज सकता है। तो दे कैन बी बायसनेस हो सकती है। एंड कॉन्फिडेंशियल नेम सजेस्ट आर हाईली सीक्रेटिव एंड दे हैव नो रेलिवेंस नाउ। आज के टाइम में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ऐसे मेथड। ऐसे मेथड एज द नेम इंडिकेट कि एम्प्लॉयज़ के बारे में आपके सुपरवाइज़र को या आपके बॉस को बोला जाता है कि आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दो, हम उसके बारे में आप ऐसे लिख के दोगे। रेट द ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, प्रोमेटेबिलिटी, कितना प्रमोशन के लायक है, द जॉब्स दैट एम्प्लॉयज़ आर एबल, द ट्रेनिंग। एंड ऑल्दो दिस मेथड में बी used independently is most frequently you found in the combination with the others. Means the supervisor is asked to write a essay about the employees. कैसा बंदा है, क्या क्या करता है, किस तरह की जॉब है, कितनी जॉब वो कर चुका है या कैसा जॉब में परफॉर्म कर रहा है, क्या उसको प्रमोशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। दिस इज द एसे मेथड। मीन्स एम्प्लॉयज़ के बारे में ऐसे लिखना है। बट दिस इज नॉट यूज्ड अलोन, दिस इज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द अदर मेथड्स। दूसरे मेथड्स के साथ हम इसको कम्बिनेशन में जो है यूज़ करते हैं। एंड इसके साथ भी वही बायसनेस आती है, बायसनेस हो सकती है। एंड इट डिपेंड अपॉन द राइटिंग स्किल, आप किस तरह से चीज़ों को लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी सुपरवाइजर की राइटिंग स्किल अच्छी ना हो और वो आपकी परफॉर्मेंस जितनी आपने की है उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब ना कर पा रहा हो, तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट मेथड इज कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। दिस इज रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय to the organization means cost and benefit means जो सैलरी हम उसको दे रहे हैं या जितना हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं क्या उतना वो हमें बेनिफिट दे रहा है। मीन्स मॉनेटरी असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू द cost of the employees to the organization. That is cost accounting method. Means आपको जितना पैसा हम दे रहे हैं, जितना खर्चा हम आपके ऊपर कर रहे हैं, क्या आप उतना बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। That is cost accounting method. This method is for checking the benefit to the employees, benefit to the organization. And vast potential increasing firms are converting their training department into profit centers. इसलिए बोलते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ चलाने हैं। वी आर वर्किंग ऑन प्रॉफिट सेंटर्स। मीन्स हमें वो लोग चाहिए जो हमारे लिए प्रॉफिट का काम करें, ना कि जो हमारे लिए कॉस्ट बने। ठीक है, तो दिस इज द रिसेंट मेथड या दिस इज द मोस्ट न्यूएस्ट मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर evaluating. Next is comparative evaluation approach. This method is also not used in alone. This is also used in the comparison, and as the name indicate, comparative evaluation, where employees are compared with the other colleagues. They are compared with the performance of the co-workers.
एंड द कंपैरेटिव एनालिसिस इज यूजुअली डन बाय द सुपरवाइजर्स जो हैं करते हैं। और नेक्स्ट जो हम दोनों मेथड पढ़ेंगे, रैंकिंग और पेयर कंपैरिजन, वो इसी का पार्ट है, रैंकिंग मेथड और पेयर कंपैरिजन। रैंकिंग मेथड्स मीन्स द सुपीरियर रैंक द सबऑर्डिनेट on the order of their merit and starting from best to the worst। ठीक है, आप उनको रैंक कर देते हैं एंड कौन कितना है, जैसे ए और बी में से बी अच्छा है या बी और सी में से सी अच्छा है, तो एम्प्लॉयज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। हाउ एंड वाई दे आर नॉट आंसर्ड, दे ओनली रैंक्ड। एंड HR डिपार्टमेंट जो है उसके बाद उसके ऊपर काम करता है कि कैसे हमने इसको रैंक करना है। यहाँ पे सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ का कंपैरिजन होता है, रैंक किया जाता है, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी बायसनेस हेलो इफेक्ट हो सकता है कि हमारे जो अच्छा लगता है उसको हम हाई रेट करते हैं, जो हमें नेगेटिव जिसके साथ वाइब्स आती हैं उसको हम लो रेट करते हैं। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन, या दिस इज द लास्ट मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन। Paired comparison means the pairs of employees are compared with the each other, means like A is compared with B, इनमें से जो better आएगा that is compared with C, and then it is compared with D, and then it is compared with the E, and on this basis a final table is made and the employees are ranked according to that comparison, and उसके बेसिस पे हम उनका ट्रेनिंग और उसका मेथड्स जो है डिसाइड करते हैं। बहुत सारे कंपैरिजन इसमें बनते हैं। कंपैरिजन के लिए एक फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई n-1 डिवाइडेड बाई 2 कि कितने कंपैरिजन जो है आपके होंगे। जैसे मान लो एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ को हम चेक कर रहे हैं तो कितने जो है आप उसको चेक करेंगे, या हम 10 एम्प्लॉयज़ को चेक करें तो कितना हो जाएगा 10-1, 10 into 9 divided by 2, 90 divided by 2 means there are 40 types of comparison to reach at a scale. Clear? So these are the methods of performance appraisal on the basis of past performance, on the basis of past performance. इसी के अंदर एक मेथड है बच्चों जो छूट गया था, that is checklist method. चेकलिस्ट मेथड यहाँ पे आता है, ये चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट में क्या किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक चेकलिस्ट बना दी जाती है और उस पर आपको सिर्फ येस और नो जो है करना रहता है कि इज़ द एम्प्लॉयज़ ऑलवेज ऑन द टाइम, हाउ इज़ द बिहेवियर, इज़ ही इज़ द गुड इन द बिहेवियर विद द अदर्स, इज़ ही इज़ शोइंग द इनिशिएटिव इन द न्यू प्रोग्राम्स, ओनली येस एंड नो। ठीक है, आपको उसको बस चेक करना है, येस 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 और नो नो। और वो लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट होती है, वो हम HR डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं और HR डिपार्टमेंट खुद उस लिस्ट के बेस के ऊपर जो है चेक करता है कि एम्प्लॉय को हमने कितना रेट देना है। तो ये मेथड्स में आपने देखा कि नॉर्मली इन मेथड्स में कैलकुलेशन बेस्ड कम है, सब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा है। सब में एक ही डिसएडवांटेज है, ज़्यादातर बायस्डनेस, मीन्स आपका सुपरवाइज़र बायस्ड हो सकता है, आपके अच्छे रिलेशन है वो आपको हाई रैंक करेगा, अगर आपके साथ कुछ झगड़ा है, कुछ नेगेटिव है तो वो आपको नेगेटिव रैंक करेगा। तो बायसनेस के चांसेस ज़्यादा हैं, हेलो इफेक्ट के चांसेस हो सकते हैं, रिसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट इसमें हो सकता है। मीन्स जो 1 साल पहले हमने काम किया था वो किसी को हो सकता है अप्रेजल के दौरान याद भी ना आए। तो दीज आर द पास्ट ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत बार इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में कि फोर्स चॉइस क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या है, मैचिंग से रिलेटेड बार से एक बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है। क्लियर? नाउ वी विल गो विद द फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड कि फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स जो हैं क्या हैं। तो फर्स्ट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज साइकोलॉजिकल अप्रेजल, थर्ड इज 360 डिग्री अप्रेजल, फोर्थ इज 720 अप्रेजल and fifth is assessment centers. Actually we can say that these are not actual the performance appraisal methods, these are for checking the potential of the employee for the future jobs कि future jobs के लिए वो किस तरह से हमारे employees काम करेंगे, कैसा वो react करते हैं, उसको check करने के लिए जाता है। फर्स्ट इज MBO। MBO आप लोगों ने खूब सुना है, कई बार हमने पढ़ा है।
MBO is management by objective. This is the term given by Peter. Yes, this is the term given by Peter Drucker in 1954 in his book named The Practice of Management. क्या नाम है पीटर ड्रकर की बुक का? Practice of Management, MBO, ठीक है, Practice of Management in 1954. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मीन्स पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हम उनको मैनेज करते हैं कि हाउ वी विल रीच टू दीज ऑब्जेक्टिव्स. Simply the supervisor and the subordinate come together to decide the objective of the subordinate for a particular time period. वो साथ बैठ के उस ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं. उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं. हाउ वी विल रीच टू दैट स्टैंडर्ड वो प्रोसीजर सेट करते हैं. एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने कर लिया है उसको कंपेयर किया जाता है जो हमने सोचा था उसके साथ. एंड फाइनल स्टेप्स, एक नया गोल, एक नई स्ट्रेटजीज हम उन चीज़ों के लिए बनाते हैं. बट MBO में भी क्या होता है कि अप्रोच इज दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द जॉब्स. सारी जॉब्स में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सारी जॉब्स में जो है एक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. एंड दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर द मैनेजरियल पर्सनल and employees who have a fair wide range of flexibility and self control in the job. Means this is used normally for the managerial jobs. जहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है वहाँ पे हम इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं. तो MBO जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है चेक के लिए. क्लियर? दिस इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, द टर्म गिवन बाय द Peter Drucker. Next is psychological appraisal. Psychological appraisal are used for the evaluation as they assess the individual future potential, not the past performance. As the psychological, as the name indicate, the performance या potential of the employee is checked with the help of psychological test, with the help of in-depth interview and the review of the other evaluation. इन evaluation के साथ साथ हम साइकोलॉजिकल अप्रेजल करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके साथ इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है कि वो अपनी जॉब के बारे में क्या सोच रहा है और आने वाले टाइम में उस जॉब से उसको कितनी उम्मीद है. तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोटिवेशनल एंड अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि उस एम्प्लॉयज़ के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको चेक करने में हेल्प करता है. बट इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है. यू नीड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट फॉर दीज टेस्टिंग. no everyone can do all these type of tests. It require more expertise than the others. Next is 360 appraisal. ये हमने बहुत सुना हुआ है, ठीक है. 360 मीन्स here is the employee और यहाँ पे जो हम चारों तरफ से उसको चेक करते हैं. एक 360 डिग्री जैसे बोलते हैं ना एंगल, एक सर्कल जब पूरा घूमता है तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री. तो हम उस एम्प्लॉय के चारों तरफ जो है जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं या जो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, वो ईच और एवरी वन जो है सिलेक्ट किया जाता है और उससे जो है उसके बारे में पूछा जाता है. तो 360 डिग्री अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ड्राइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स कि जो लोग उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उन सबसे रिलेटेड डाटा जो है हम इकट्ठा उसके बारे में करते हैं. दिस इज नोन एज 360 degree appraisal and normally it includes the supervisors, the team members, peers and self. कौन कौन होंगे 360 में? Supervisors, peers and the team members and the self, खुद बंदा, ठीक है, चार लोग. स्टेक होल्डर मीन्स दिस इज नॉर्मली रिलेटेड टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल जो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं उन लोगों के. 720 अप्रेजल इसी को एक्सटेंड किया गया है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को जो है
इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल से आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हो उनसे भी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनसे जो है आप कांटेक्ट में आते हो। तो दैट इज़ 720। 360 मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपसे रिलेटेड लोगों से पूछा जाता है। और 720 में एक्सटर्नल एसेसीज भी आते हैं जो बाहर से हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बता देते हैं। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। क्लियर हुआ? तो 360 इज अबाउट इंटरनल असेसर्स एंड 720 इज अबाउट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल असेसर्स। उन दोनों को मिला के आपकी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज असेसमेंट सेंटर्स, एसीज। असेसमेंट सेंटर्स हमने ट्रेनिंग में भी पढ़ा था, तो ये दोनों जगह सेम ही रहता है। असेसमेंट सेंटर्स में ट्रेनिंग में क्या था, हमने किया था कि मैनेजरियल पोजीशंस के जो लोग हैं उनको आउटसाइड द जॉब कुछ टाइम के लिए लेके जाया जाता है, मे बी 1 to 3 days, वेयर द एम्प्लॉयज़ आर आस्क्ड टू group at a place which is outside the job environment. They stay there, they participate in the various games like simulation game, business games, like techniques or some situations, and on this the assessors or the trainers assess the behavior of the employees in that time. This is normally for the emotional or behavior aspect of the managers. This is also used for the managerial jobs. Managerial jobs के लिए यूज़ की जाती है। बट मेन इसका पार्ट क्या है कि मेन इसका डिसएडवांटेज क्या है असेसमेंट सेंटर्स का, कि यहाँ कॉस्ट आपको बाहर करना पड़ता है, उसके लिए कॉस्ट लगती है। आपको बाहर से एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं जो आपके बिहेवियर को जो है असेस करते हैं, आपके बिहेवियर को जो है चेक करते हैं। तो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है होता क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स, पास्ट ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। दीज मेथड्स can be differ from company to company, level to level of the employees and type of the job. There are different method for the managerial jobs, there are different method for the supervisory jobs, and there are different methods for the higher positions. And we can use the one method, we can use the combination of 1 or 2 method at the same time. Clear? So these are the methods of performance appraisal. This is all about performance appraisal. If you have any queries related to this topic, you can write in comment box. We can contact you, or we will take these queries in our next video. Thank you.